Hello and welcome dear students. I am present before you once again with lesson 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Since it is an autobiography, obviously it is written by Nelson Mandela himself. The first we see here is the summary. And about the summary, what are the main highlights? The first one is the inauguration day. And what does Nelson Mandela say here? 10th May dawn, it was bright and clear. Many world leaders had been coming to the author to pay respects to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be the largest gathering of the world leaders over here. Now we see about the place for inauguration. The inauguration ceremonies took place in the big open building in Pretoria. Here, the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. Now, what we see here is the swearing in ceremony. On that day, the author was in the company of his daughter Zenani, and Mr. D. Clark was the first to be sworn in as a second deputy president, and then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. It was the author's turn then. He was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. Now we see how author addresses on this auspicious occasion of his oath taking. The author spoke to the newborn liberty. He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. It was the common victory for justice, peace, and human dignity. He pledged to liberate his people from poverty, suffering, and discrimination. Now, what all things take place during this auspicious occasion? There is a display by jets and helicopters. So, I shall explain that. After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings there. It was from military's loyalty to democracy for a new government. Then the highest military generals, having medals on the chests, saluted the author. He thought that they would have arrested him many years before. Now comes the time for singing of the national anthems. The day was symbolized for the author by the playing of two national anthems. These form the old anthems of the Republic. Now we come to know about the author's thoughts. We will see about author's thoughts. On that day of the inauguration, the author thought of history. In the first decade, the South African people had patched up their differences with the colored skinned people. They had built a system of supremacy and superiority also. It was the basis of the hardship societies. This system had now stood overturned. Now it was the system that recognized the rights and freedom of all people. In the next paragraph, we see the author's regret how this auspicious day came after the sacrifices of thousands of the people. The author thought of himself the sum of all those people. He was pained that he couldn't thank them. Now, in the next one, we see next step how the freedom fighters were to be remembered. The policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people. This policy has produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo, etc., and many more. They were men of uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people.
Now here we see how author defines courage. What is the definition of courage according to the author? From these people, the author learned the meaning of courage. They risked their lives. They underwent great torture. He learned that the courage was not the absence of fear, but the victory over it. Now, he speaks about man's natural goodness. The author says that no one is born hating another person due to color or religion. They could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison, they were pushed to the wall, but he saw humanity in the hearts of the guards. It was man's essential goodness, it can't be put out. Now he tells about duties, man's duties. In every life, man has twin duties to his family, to his community, and country. First one is towards his family, and the second one is to his community and country. The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people. Thus, he was not allowed to do his duties to his family. Now we see how freedom defined according to Nelson Mandela. The author was born free. He was not born with a hunger to be free. He was free as long as he obeyed his father and obeys the customs of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. In the next passage, we will see the desire for freedom which made him bold. But as soon as he saw that he was also not free like his brothers and sisters, then he joined the African National Congress. His hunger for the freedom of his country became great. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. It made him bold. It made him live like a monk. The chains on his people became chains for him too. The author knew that the oppressor must be liberated like the oppressed. A man who takes away another's freedom becomes hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. So both the oppressor and the oppressed are robbed in humanity. So what he wanted, we see here, he said that the freedom has many aspects, and for a child it is to run and play, and for an adult it is to fulfill the needs of his own and his family. But real freedom means equal rights for everyone. He desired, what does Nelson Mandela desired? So Nelson Mandela desired people to live with dignity and respect. And in the end, he wanted the oppressors and the oppressed to be liberated, means to be free. Patience and perseverance, guided by discipline, were the key words for the desired results, he stressed. You know what is apartheid? Apartheid actually is the policy of racial segregation. As I had told you, this was an autobiography. An autobiography is a life story of a person written by himself. And where did the Swanen
swearing in ceremony of Nelson Mandela took place? It took place in amphitheater. An amphitheater is a large open theater. And what do you mean by dignitaries? They were dignitaries present, I told you. So those are the eminent persons. And what does the word oppression here means? Means torture, the torture given to the blacks by the whites in this particular case. And they were very jubilant, means joyful and happy. Now let's see a video on Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, हमने समझा वो इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वी नो दैट उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें से एक स्क्रिप्ट है. हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा, उनकी स्पीच के बारे में देखा. एंड देन वी सॉ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे इंडिया गेट पे आपने देखा होगा ऑन योर टेलीविजन ऑन रिपब्लिक डे, किस तरीके से हम देखते हैं मिलिट्री को परफॉर्म करते हुए ऑन रोड्स एंड इन द एयर, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी डिस्क्राइब करते हैं. एंड ऑल्सो ही डिस्क्राइब्स किस तरीके से वहां पे वो लोग दो नेशनल एंथम्स गा रहे थे. एंड वो दो नेशनल एंथम्स एक्चुअली डिफरेंट थे. ये डिफरेंट क्यों थे? डिफरेंट इसीलिए थे, एक वाज वो नेशनल एंथम जो कि द व्हाइट्स यूज्ड टू सिंग एंड एक वो जो कि डार्क यूज्ड टू सिंग. सो अब ये दो कौन से थे? सो फर्स्ट वाज द नेशनल एंथम जो ओल्ड नेशनल एंथम था, जो कि ज्यादा शो करता था द व्हाइट सुप्रीमेसी. और दूसरा नेशनल एंथम जो कि अब नया नेशनल एंथम था, दैट वाज फॉर होल कंट्री, वो स्पेसिफिकली एक सेक्शन के लिए नहीं था. सो जब लोग ये वाले नेशनल एंथम्स गा रहे थे, सो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप्स थे. एक वो थे जो कि व्हाइट पीपल थे एंड दूसरे दे वर पीपल हु वर डार्क स्किन. सो जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंथम्स जब प्ले हो रहे थे, तो ऑब्वियसली उनके लिरिक्स नहीं पता थे उनको. सो नेल्सन मंडेला सेज कि मेरे लिए ये देख के काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो इन दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम के बारे में नहीं पता. हालांकि अब एक ही नेशनल एंथम है, बट बिकॉज पहले यहाँ पे अर्लियर दूसरा नेशनल एंथम फॉलो होता था एंड अब जो नेशनल एंथम है दैट इज फॉर ऑल, राइट? वो एक्सक्लूड नहीं करता था किसी को. सो ये सेज कि अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जो दोनों ग्रुप्स थे उनको एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं आते थे, बट दे वर स्टैंडिंग देयर, दे वर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट, एंड इट शोज दैट फ्यूचर में इनको ये बाय हार्ट लर्न होने वाला है. एंड जो इसके वर्ड्स हैं, दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज पीपल. सो इन द लास्ट वीडियो तो हम ये सारी चीजों के बारे में स्टडी कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बचा हुआ है उसको कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं, जिसमें से ये बोलते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह सकते हैं, वो होती हैं इन एवरीबॉडीज लाइफ. एंड वो क्या है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, फर्स्ट तो अपनी फैमिली की तरफ हो गई, एंड सेकेंड इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. यानी कि आप कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल या टू थिंग्स. एक तो अपनी फैमिली एंड दूसरा अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री. एंड वो कहते हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. अब अगर कोई फ्री कंट्री होगी, कोई उस तरह की सिविल सोसाइटी होगी जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स होंगे एंड एवरीबडी इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो उस तरह की कम्युनिटी में, उस तरह की सोसाइटी में, उस तरह की नेशन में ये सबके लिए आसान होगा कि अपनी दोनों की दोनों ऑब्लिगेशंस को जितना हो सके उतना वो कंप्लीट करें. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका, इससे पहले कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना था, इससे पहले कि हम सब लोगों की वॉइसेस को सुना गया था, उससे पहले हमारे लिए इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना इम्पॉसिबल था. क्यों? फर्स्टली उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. दैट मीन्स ना तो वो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाते, ना ही वो अपनी कम्युनिटी, अपनी
कंट्री जो भी उनके उसके थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर पाते। और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उनको इग्नोर किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करी जाती थी। That is why it is an important line. Then he says, in South Africa, a man of color who attempted to live a human being was punished and isolated. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन लाइंस को लाइन बाय लाइन क्यों देख रहे हैं? हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे atrocities, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे मुश्किलें बताई हैं that he had to face, and उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी। That is why ये जो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। सो ये कहते हैं कि कलर्ड का जहाँ पे मतलब आ गया, मतलब द पीपल ऑफ डार्क स्किन। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना भी चाहते थे तो हमें उसके लिए पनिश किया जाता था, कहीं हमें दूर भेज दिया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, उनको स्लेवरी भी उनके साथ करी जाती थी। तो वो कहते हैं इन साउथ अफ्रीका जो भी ये करने की कोशिश करता था उसको पनिश किया जाता था। एंड आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब वो कहते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अपने फैमिली को छोड़कर अपनी जो कंट्री है उस पर ध्यान दूँ। बिकॉज अगर हम आज भी पूछते हैं तो सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फैमिली ही होती है, एंड उसके बाद भी थिंक अबाउट कंट्री, राइट? सो नेल्सन भी ये कहते हैं कि मैं कोई अलग नहीं था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। एंड मेरे लिए फ्रीडम बचपन में मुझे नहीं समझ आता था ये क्या था। वो तो जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ आया कि ना तो मुझे यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ना मैं अपने आइडियाज को शेयर कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, तो मुझे समझ आया कि इस तरह के फ्रीडम से मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है, किसी लिए मेरे साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एंड देन वो कहते हैं तब तक तो मुझे सिर्फ पर्सनल लग रहा था कि मेरे लेवल तक ही था, लेकिन देन जब मैंने अपने सिबलिंग्स को, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को भी सेम चीज को फेस करते हुए देखा, एंड उसके बाद जब मैंने बहुत सारे लोगों को इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा, देन आई मेड अप माई माइंड कि नहीं, ये जो फ्रीडम है, ये जो मेरी फाइट है, वो मेरे लिए नहीं होगी या सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं होगी, ये उन सारे लोगों के लिए होगी जो कि ऑप्रेस्ड है। So that is why it was said it was only when I began to learn. And then वो कहते हैं I yearn for basic and honorable freedoms, यानी कि बेसिक फ्रीडम भी नहीं मिलता था, उनके पास नहीं था, जैसे कि फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, टू हैव अ फैमिली, सो ये सारी चीजें। देन उसके बाद वही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली बात कहते हैं वो, एंड दैट इज व्हेन ही जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वही पार्टी है जिसने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400 इन द डेमोक्रेसी, एंड तभी जाके नेल्सन प्रेसिडेंट बने थे। सो यहीं पे उन्होंने देखा, जब समझा प्रॉब्लम को, तो उन्होंने ज्वाइन किया इस पार्टी को, एंड इसके बाद जो उनकी फ्रीडम की हंगर थी वो सिर्फ बढ़ती ही गई, एंड वो सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं थी, वो उनकी कंट्री के लिए भी थी। That is what it is said. It was this desire for the freedom, my people to live their lives with dignity, self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. So यही dignity, यही respect मैं अपने तरह के लोगों के लिए देखना चाहता था, and इसकी वजह से मैं इतना डरा हुआ इंसान जो कि इन सारी चीज़ों को सिर्फ सोच रहा था, फाइनली मैंने एक बोल्ड स्टेप उठाया एंड मैं एक बोल्ड फ्रंट पे आया। This is what he says, that drove law-abiding attorney to become a criminal. मतलब मैं उस तरह का इंसान था जो कि बेसिकली लॉ को मानता था। If at all it exists in some places, मैं उस चीज़ को मानता था, लेकिन जब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा, मैंने आवाज़ उठाई, तो डेफिनेटली मुझे जेल में डाला गया। एंड when we put person in a jail, तो डेफिनेटली हम उसको क्रिमिनल ही कहेंगे। सो इसीलिए वो यहाँ पे अपने लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रिमिनल, दैट turn family loving husband into a man without home. So because ये फाइट उनके लेवल से काफी ज्यादा ऊपर थी, तो यहाँ पे वो सिर्फ फैमिली की वजह से बिल्कुल रिस्ट्रेन होके, या आप कह सकते हैं बंद के नहीं रह सकते थे। सो फैमिली को भी उन्हें अपने पीछे छोड़ना पड़ा, एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह अकेले उनको ये फाइट को लड़ना पड़ा, बिकॉज ही न्यू कि ये सिर्फ उनके अच्छे के लिए या उनके इंटरेस्ट के या सिर्फ उनकी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए नहीं, ये बहुत बड़ी चीज पे बात हो रही है, दैट इज फ्रीडम फॉर ऑल। सो यही वो बात कहते हैं, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। सो
डिवाइड नहीं कर सकते उस तरीके से कि अच्छा तुम्हें इतनी फ्रीडम मिलेगी, तुम्हें उतनी फ्रीडम मिलेगी, ये करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, राइट? वो इनडिविजिबल है, राइट? एंड अगर मेरी कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर इंसान को किसी एक चीज को करने के लिए मना किया जाता है, चेन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, दैट मीन्स वही सारी चीजें मुझ पे भी लाई करेंगी, यानी कि वो सारी चीजें मुझ पे भी प्रोजेक्ट करी जा सकती हैं। सो अगर एक पे भी उन्होंने इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाई या चेन किया तो वो हमारी कम्युनिटी के लिए होगा। सो वन फॉर ऑल फॉर वन। सो यही वो कहते हैं यहाँ पे, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनने की कोशिश करता है वो खुद एक प्रिजनर होता है ऑफ हेट्रेड का। उसके अंदर इतनी सारी हेट्रेड है, वो इतनी ज्यादा हेट्रेड में अपने आप कैद है कि वो दूसरे की फ्रीडम को छीनना चाहता है। एंड ये वर्ड्स, इन्हीं कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपके वैल्यू बेस्ड या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि विद इन द टेक्स्ट होते हैं, ठीक है? दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग आउट दिस लाइन। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So वो खुद एक ऐसी जेल के पीछे बंद है जो कि नैरो माइंडेड जेल है, एंड दूसरा यहाँ पे प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस यानी कि आप किसी एक चीज के लिए पार्शियल हो रहे हो, राइट? सो प्रेजुडिसेस हैं और नैरो माइंडेड यानी कि छोटी थिंकिंग। सो यही वो कहते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। सो जो ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेसर होता है उन दोनों को उनकी ह्यूमैनिटी से रॉब किया जाता है। अब ऑप्रेस्ड को कैसे? ऑप्रेस्ड यानी कि जिन इंसान के साथ ये सारी गलत चीजें होती हैं, राइट? तो उनको कैसे? ऑब्वियसली उनकी राइट्स छीने जाते हैं, उनकी आवाज को नहीं सुना जाता। एंड ऑप्रेसर कैसे? बिकॉज उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं रहती। जब उसके अंदर इतनी सारी हेट्रेड और इतनी सारी नैरो माइंडनेस आ जाती है तो ह्यूमैनिटी कहाँ रह जाती है? सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस चैप्टर। तो ये तो थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट की देखी, सेकंड वीडियो में हमने सेकंड पार्ट की देखी। दोनों